Now, today we are going to learn changes in the Memorandum of Association. Memorandum of Association is an important, fundamental, and basic document of a company which cannot be easily changed. However, depending upon the requirements, the Memorandum of Association can be changed in a restricted manner by following the provision of Companies Act. So, as we discussed in our previous lecture, the Memorandum of Association is a base of company, and it is a fundamental and basic document of every company, whether it is a private or it is a public company, and you cannot easily change in Memorandum of Association. And if any company want to change in their Memorandum of Association, so at that time shareholders permission, government of India central government permission required, company registrar permission is also required, and some of the times company has to take a permission from honorable court. But some of the changes, if company want to make, they can easily change, but according to Companies Act 2013. Now, first is change in name clause. A company may changes its name clause by passing a special resolution to that effect, and same has to be approved by the central government within of 15 days from the date of such approval from the central government. The registrar of company must be informed by the company about such change of name. The registrar enters new name of the company in the register of company. However, no such approval of the central government is necessary when the word private is added or deleted from the name on the conversion of any classes of company to another class. So, a company is an artificial person, and company may change its name by by passing a special resolution. For special resolution, at least 75% majority of shareholders is required. And if any company want to change its name, they must approved by central government. And if central government give permission to change their name, so within 15 days, such approval of central government must be registered on registrar office, and the company registrars enters a new name of company. अगर कोई भी कंपनी है, अगर उसको नेम चेंज करना है, तो उसके लिए उसको स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए, जितने भी शेयर होल्डर है उनकी परमिशन चाहिए। तो कंपनी जो शेयर होल्डर है उसकी परमिशन के लिए सभी शेयर होल्डर की मीटिंग रखनी पड़ेगी और फिर वोटिंग करना पड़ेगा। अगर 75% शेयर होल्डर की मेजोरिटी हुई और उन्होंने परमिशन दिया, तभी आप कंपनी का नाम चेंज कर सकते हो। दूसरा, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी भी परमिशन लेनी पड़ेगी, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको परमिशन दी, उसके 15 डेज के अंदर जो कंपनी रजिस्ट्रार है वहाँ पर जाना है और आपका जो न्यू नेम है उसका रजिस्ट्रेशन आपको करवाना है। लेकिन अगर कोई आपकी पार्टनरशिप फर्म है
और फिर आपको उसको प्राइवेट लिमिटेड बनाना है। कई बार क्या होता है, स्टार्टिंग में पार्टनरशिप फर्म होता है, लेकिन जैसे ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, सो पार्टनर्स वांट टू कन्वर्ट partnership into private company. So if you add a private word, so such type of central government's approval is not required. And sometimes any private limited want to delete their private word, because sometimes a private limited want to be a public company. ऐसा हो सकता है क्योंकि उनको पब्लिक में शेयर इश्यू करने हैं, तो ऐसा हो सकता है। जैसे इन हिम्मतनगर, when Asian Tiles Private Limited start, at that time this company is private limited, but they do not having sufficient capital, so now they decided to issue a share in the market and convert private limited into public limited. तो जब उन्होंने एशियन टाइल स्टार्ट की तब वो प्राइवेट लिमिटेड थी। अब उसको उनको ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी, तो उन्होंने शेयर मार्केट में इश्यू किए और पब्लिक में से अमाउंट लिया। तो पहले एशियन प्राइवेट लिमिटेड थी, अब पब्लिक लिमिटेड हो गई। तो ऐसे आप नेम चेंज कर सकते हो, लेकिन शेयर होल्डर की 75% मेजोरिटी चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल भी आपको चाहिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया उसके 15 डेज के अंदर जो कंपनी रजिस्ट्रार की ऑफिस है वहाँ जाके आपका जो न्यू नेम है उसका रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ेगा। नाउ सेकंड थिंग, चेंजेस इन रजिस्टर ऑफिस क्लोज। Change of register office within the same city. By passing resolution, any company can change its register office. The company must inform such change of address within 15 days of such changes of its register office to the register of companies. So company's register office, that is very much important for shareholders, creditors, customers, government, because all these parties doing communication with company from their register office address. But if any company want to change their register office address but in same city, जैसे आपकी हिम्मतनगर के अंदर कंपनी है और रजिस्टर ऑफिस भी हिम्मतनगर है, और मोतीपुरा से आपकी रजिस्टर ऑफिस आपको मेहतापुरा शिफ्ट करनी है या महावीनगर शिफ्ट करना है, तो इसके लिए आपको जो कंपनी के ऑनर्स है, शेयर होल्डर, उस उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी कि भाई कंपनी अपनी ऑफिस चेंज कर रही है, और उन्होंने अप्रूवल दे दिया तो विद इन 15 डेज के अंदर कंपनी की रजिस्टर ऑफिस है उसका जो न्यू एड्रेस है वो शेयर होल्डर को भी आपको सेंड करना पड़ेगा, और कंपनी की जो रजिस्ट्रार ऑफिस है वहाँ जाके जो न्यू एड्रेस है उसका भी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। सेकंड थिंग, चेंज ऑफ रजिस्टर ऑफिस फ्रॉम वन सिटी to another within the same state. The registered office of any company can be changed from one city to another from the jurisdiction of one registrar to the jurisdiction of another registrar of after having passed a special resolution by the company to the effect and also on the permission given by the regional director to that effect. So if any company want to change the register office one city to another city, like if Asian Tiles register office in Himmatnagar, and if Asian Tiles want to be transferred its a register office Himmatnagar to Ahmedabad,
So here, if company change its register office, its jurisdiction of one रजिस्टर चेंज हो जाएगा, क्योंकि पहले हिम्मतनगर के अंदर थी तो हिम्मतनगर के जुरिडिकेशन में आता था, तो उसके सभी रूल्स उसको फॉलो करने थे। अब अहमदाबाद शिफ्ट हो गई तो वहाँ की जो कोर्ट है उसके रूल्स उसको फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए उसको स्पेशल रिजोल्यूशन करना पड़ेगा, मतलब शेयर होल्डर की परमिशन लेनी पड़ेगी, बिकॉज द ऑनर ऑफ द कंपनी दैट इज शेयर होल्डर, उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी स्पेशल रिजोल्यूशन, मतलब उसके लिए 75% शेयर होल्डर की मेजोरिटी होनी चाहिए। और फिर कंपनी का जो रीजनल डायरेक्टर की ऑफिस है वहाँ जाके आपको जो न्यू कंपनी का रजिस्टर ऑफिस का एड्रेस है उनकी परमिशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, और उन्होंने अगर परमिशन दे दी तो एक सिटी से आप अनदर सिटी के अंदर अपनी कंपनी के ऑफिस ट्रांसफ़र कर सकते हो। चेंज ऑफ रजिस्टर ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। Register office of a company can be shifted from one state to another state with the following condition. The permission of central government is to be obtained by company. After obtaining the permission from the central government within 30 days, application is to be presented to the registrar of companies with certified copy of permission along with necessary fees and requisite form. If any company want to change register office one state to another state, so here company want to change register office from one state to another state. If any company register office in Gujarat, now a company want to shifted Gujarat to Maharashtra और महाराष्ट्र टू दिल्ली। अगर किसी कंपनी की रजिस्टर ऑफिस गुजरात के अंदर है और उसको महाराष्ट्र के अंदर शिफ्ट करना है, सो हियर कंपनी चेंज्ड वन स्टेट टू अनदर स्टेट, सो एट दैट टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन इज कंपल्सरी एज पर द कंपनीज एक्ट। इन इफ सेंट्रल गवर्नमेंट गिव अप्रूवल for change the register office, so after getting the permission from central government within a 30 days this company must be applied from registrar office companies। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने परमिशन दे दिया उसके 30 डेज के अंदर जहां पर आपकी रजिस्टर ऑफिस जो स्टेट के अंदर शिफ्ट हो रही है वहाँ का जो रजिस्ट्रार है उसके पास जाना है और वहाँ पर कॉपी ऑफ परमिशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी उसको रजिस्टर्ड कराना है, उसकी परमिशन लेनी है और नेसेसरी फीस भी आपको पे करनी है। इफ द क्रेडिटर्स, डिबेंचर होल्डर्स एंड अदर कंसर्न पर्सन विद द कंपनी have any objection to change of register office, they may apply for that. Intimation of such alteration of office shall be intimated to the registrar of the state where the office is being shifted, and a fresh certificate of incorporation shall be given by him indicating such changes of registrar office। Sometimes creditors and debenture holders or other bank are very much concerned with the company, क्योंकि क्रेडिटर्स ने आपको गुड्स या सर्विस क्रेडिट पे प्रोवाइड किया है, डिबेंचर होल्डर ने आपकी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया है और जो बैंक ने आपको लोन दिया है तो आपको उनसे भी परमिशन लेनी पड़ेगी कि भाई हमारी रजिस्टर ऑफिस एक स्टेट से अनदर स्टेट हम शिफ्ट कर रहे हैं, उनकी परमिशन कंपलसरी है।
और अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो वो कोर्ट के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं कि भाई हमको ये कंपनी से अमाउंट लेना है और ये कंपनी चेंज कर रही है अपनी ऑफिस। अगर आपको गुजरात से महाराष्ट्र में ऑफिस शिफ्ट करनी है तो अभी महाराष्ट्र का जो रजिस्ट्रार है वहाँ आपको जाना है, उसके लिए नेसेसरी डॉक्यूमेंट आपको इश्यू वहाँ पर करने हैं, उनकी परमिशन लेनी है और वहाँ पर न्यू कंपनी जैसे शिफ्ट हो रही है उसका फ्रेश सर्टिफिकेट वहाँ से इश्यू होगा। उसके लिए नेसेसरी डॉक्यूमेंट आपको देनी पड़ेगी और उसकी फीस भी आपको पे करनी पड़ेगी। तो वैसे आप कंपनी ऐसे शिफ्ट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए रजिस्ट्रार ऑफिस से परमिशन मिलना ज़रूरी है। जैसे टाटा कंपनी है, उसका जो नैनो कंपनी का प्लांट है वो पहले वेस्ट बंगाल में था, फिर उसने गुजरात के साणंद में शिफ्ट कर दिया। तो वेस्ट बंगाल से गुजरात मतलब स्टेट चेंज हो गया, तो गुजरात के अंदर आना है साणंद के अंदर, तो वहाँ पर जो कंपनी की रजिस्ट्रार ऑफिस है वहाँ जाना पड़ेगा, उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी और वहाँ से उनको सर्टिफिकेट भी लेना पड़ेगा। नाउ थर्ड, चेंज इन ऑब्जेक्ट क्लोज। Object clause of a company can be changed only on the following condition. A company cannot deviate from the object without passing special resolution for which the capital is raised. No alteration made in the object clause shall be effective until it has been registered by the registrar of companies. Changes in the object clause of memorandum of association can be made, giving any member right to participate in the divisible profit of a company. When a company is limited by guarantee and does not have share capital, any other change of object clause shall be void. So as we discussed in earlier lecture, so very important clause of memorandum of association, that is object clause, very much important, and you cannot easily change in object clause. If any company want to use its capital for another purpose, like when Asian Tiles Limited issued a share in the market, at that time, in the memorandum of association in object clause, they mention about their object for producing tiles, manufacturing tiles. So their main purpose behind to raise capital to manufacturing tiles. If Asian Tiles want to manufacturing paper or anything another like textiles production. So at that time, this company must be passed a special resolution because their main purpose behind Asian Tiles is to manufacturing tiles. Now they want to manufacture textiles things. So that is different things. So special resolution is required. क्योंकि जब उन्होंने पब्लिक से पैसा लिया था तब उन्होंने किया कहा था कि भाई हमारा मेन पर्पस टाइल्स का प्रोडक्शन करना है। अगर अभी कंपनी सोचती है कि कंपनी को पेपर मिल डालनी है, उसी पैसों से पेपर मिल का प्रोडक्शन करना है, या कंपनी जो है उसको टेक्सटाइल का प्रोडक्शन या इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोडक्शन करना है, तो उसके लिए शेयर होल्डर का स्पेशल रिजोल्यूशन चाहिए, क्योंकि शेयर होल्डर ने उनको अमाउंट टाइल्स का प्रोडक्शन के लिए दिया था। अब उनको पेपर का प्रोडक्शन करना है तो ऑब्जेक्ट चेंज हो गया, तो स्पेशल रिजोल्यूशन रिक्वायर्ड। देन नो ऑल्टरेशन मेड इन ऑब्जेक्ट क्लोज shall be effective until it has been registered by the registrar companies.
जब तक कंपनी का जो रजिस्ट्रार कंपनीज है वहां से आपको परमिशन नहीं मिलती, तब तक आप ऑब्जेक्ट क्लोज के अंदर कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। उनकी परमिशन लेनी कंपलसरी है। विदाउट रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज परमिशन you cannot made any changes in your object clause. Then change in the object clause of memorandum of association can be made giving any member right to participate in the divisible profit of a company. अगर कोई कंपनी है उसका जो प्रॉफिट है, तो जो प्रॉफिट है तो जितने भी मेंबर्स ने एडमिट हुए हैं, जो शेयर होल्डर हैं, उनको प्रॉफिट के अंदर से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, उनको देना है। अगर कंपनी का जो डिविजिबल प्रॉफिट है उसमें से कंपनी अपने मेंबर्स को डिविडेंड दे सकती है, लेकिन अगर वो जो प्रॉफिट है डिविजिबल उसका कोई अनदर यूज करना है तो उसके लिए भी आपको परमिशन लेनी जरूरी है। फिर आप ऑब्जेक्ट क्लोज के अंदर चेंज कर सकते हो। अदरवाइज एनी अदर चेंजेस ऑफ ऑब्जेक्ट शैल बी वॉइड। अगर आपने कोई परमिशन नहीं ली, रजिस्ट्रार से परमिशन नहीं ली या शेयर होल्डर से परमिशन नहीं ली, तो वो आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट आपका वैलिड नहीं हो सकता। नाउ चेंज इन लाइबिलिटी क्लोज। In this clause, following alteration can be done. It may extinguish or reduce the liabilities of any of its share in respect of share capital not paid. So change in liabilities clause. So कोई भी कंपनी है उसके जो शेयर होल्डर उसकी लाइबिलिटीज क्या रहेगी? अगर कोई कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है उसका मतलब ये हुआ कि शेयर होल्डर की लाइबिलिटीज उन्होंने जितना इन्वेस्टमेंट किया उतनी ही रहेगी। अगर अनलिमिटेड कंपनी है सो एट दैट टाइम लाइबिलिटीज ऑफ शेयर होल्डर इज अनलिमिटेड। इफ एनी कंपनी बिकम इंसॉल्वेंट सो ऑल द शेयर होल्डर्स पर्सनली देयर उनकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो सेल करनी पड़ेगी और लाइबिलिटीज पे करनी पड़ेगी। अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो कंपनी स्टार्ट करने में जो जो मेंबर्स ने गारंटी दी है उतना उनको अमाउंट पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई कंपनी है वो रिड्यूस द लाइबिलिटीज ऑन एनी ऑफ इट्स शेयर, कोई भी कंपनी है तो अपनी लाइबिलिटीज कम कर सकती है। जैसे कोई कंपनी है तो उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है तो उसको लिमिटेड करना है तो उसके लिए शेयर होल्डर की परमिशन चाहिए। कंपनी रजिस्ट्रार से आपको परमिशन लेना पड़ेगा, फिर आप रिड्यूस अपनी लाइबिलिटीज कर सकते हो। जैसे कोई कंपनी बाय गारंटी है तो ए शेयर होल्डर ने 10 लाख की गारंटी दी है, बी ने 20 लाख की दी है, सी ने 30 लाख की दी है। अब सी है जिसकी गारंटी 30 लाख की है और बोलते हैं नहीं अगर 30 लाख की जगह मेरे को 20 लाख करना है तो उसकी लाइबिलिटीज में चेंज करना है, उसकी लाइबिलिटी आपको रिड्यूस करना है तो उसके लिए भी जो मेंबर्स हैं रजिस्ट्रार है उससे आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल और लिमिटेड बाय गारंटी में रिड्यूस इट्स शेयर कैपिटल बाय अ स्पेशल रिजोल्यूशन। कोई भी कंपनी अगर लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल है तो उसको स्पेशल रिजोल्यूशन करके वो अपनी लाइबिलिटीज कम कर सकती है। जैसे कोई कंपनी उसके 5 लाख शेयर है मार्केट के अंदर और उसको अगर 5 लाख में से 50,000 के शेयर कम करने हैं, 4,50,000 ही रखना है तो वो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए स्पेशल रिजोल्यूशन करना पड़ेगा, शेयर होल्डर की परमिशन लेनी पड़ेगी, फिर आप शेयर कैपिटल रिड्यूस कर सकते हो। अगर कोई कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है जैसे बीसीसीआई है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया,
वो लिमिटेड बाय गारंटी है, उसमें से किसी मेंबर को अपनी लाइबिलिटीज कम करनी है तो उसके लिए स्पेशल रिजोल्यूशन करना पड़ेगा, फिर आप उसकी लाइबिलिटीज कम कर सकते हो। स्पेशल रिजोल्यूशन का मतलब जितने भी शेयर होल्डर हैं उसमें से 75% के वोट आपके फेवर के अंदर होना चाहिए, मेजोरिटी होनी चाहिए, फिर आप चेंज कर सकते हो। नाउ फिफ्थ नंबर, चेंज इन कैपिटल क्लोज। A limited company having a share capital may, if so authorized by its articles of association, alter its memorandum of association after passing resolution in its general meeting. By such resolution, a company may change its capital close in the following manner. First, increase its authorized share capital. So any limited company having share capital, if any company want to change in their capital, they have to pass a special resolution from shareholders, like increase in its authorized share capital. अगर कोई भी कंपनी है उसको ऑथोराइज कैपिटल इंक्रीज करनी है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज है, उसने अगर कंपनी स्टार्ट की, उसको 100 करोड़ की रिक्वायरमेंट थी, तो जब उन्होंने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाया था उस टाइम कैपिटल क्लोज के अंदर उन्होंने अपनी कैपिटल 100 करोड़ दिखाई थी। अब कंपनी को सपोज एक्सपांसन करना है, कुछ इनोवेशन करना है, और कंपनी को ऐसा लग रहा है कि भाई 100 करोड़ नहीं, अब उसको 200 करोड़ की रिक्वायरमेंट है, तो जब कंपनी की एस्टैब्लिशमेंट हुई तब आपने मेमोरेंडम में 100 करोड़ दिखाया था, लेकिन अब आपको 200 करोड़ चाहिए, तो 100 करोड़ आपको इंक्रीज करना है, पब्लिक के अंदर शेयर इश्यू करना है, तो उसके लिए शेयर होल्डर की परमिशन चाहिए, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा, फिर आप अपनी ऑथोराइज कैपिटल इंक्रीज कर सकते हो। ऐसे ही बहुत सारी कंपनी है वो इंक्रीज करती रहती है, क्योंकि अभी ग्लोबल कंपटीशन चल रही है, इतने बड़े कंपटीशन के अंदर अगर मार्केट में आपको टिकना है तो आपके पास कैपिटल ज़्यादा होनी चाहिए। तो ऐसे कई इंडिया के अंदर लिमिटेड कंपनी हैं, जब उनको लगे कि उनकी ऑथोराइज कैपिटल कम हो है तो ज़्यादा कैपिटल के लिए वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कैपिटल क्लोज के अंदर चेंज कर सकते हैं। कंसोलिडेट and divide all or any of its share capital into shares of larger amount than its existing shares। कई बार कंपनी को ऐसा लगे कि उनके पास जो लार्ज अमाउंट के जो शेयर हैं उसको डिवाइड कर देना है, उसको स्मॉल शेयर के अंदर कन्वर्ट करना है, तो वो कर सकते हैं। जैसे कंपनी के पास सपोज 1 लाख शेयर हैं और वो 100 रुपीज़ के हैं, तो 1 लाख शेयर है और 100 रुपीज़ के हैं, तो कंपनी को लगे कि भाई 100 रुपीज़ का जो शेयर की प्राइस थोड़ी ज़्यादा है, तो उसको 10 रुपीज़ में कन्वर्ट करना है या 50 रुपीज़ के शेयर के अंदर कन्वर्ट करना है, तो वो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी उसको एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा। फिर कंपनी जो है, जो लार्जर अमाउंट के शेयर है उसको स्मॉल अमाउंट के शेयर के अंदर कन्वर्ट कर सकती है। सब डिवाइड इट्स अ शेयर और एनी ऑफ देम इनटू शेयर्स ऑफ अ स्मॉलर अमाउंट देन इज मेंशन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सब डिवाइड इट्स अ शेयर, कई बार क्या होता है कि मार्केट के अंदर डिप्रेशन या रिसेशन पीरियड चलता है, तो कई बार क्या होता है कि इन्वेस्टर के पास इतनी अमाउंट नहीं होती
कि जिससे वो आपके ज़्यादा शेयर परचेस कर सके। तो कई बार कंपनी क्या करती है कि उनके जो शेयर्स हैं उसको स्मॉल अमाउंट के अंदर सब डिवाइड कर सकती है। इससे क्या होगा कि मार्केट के में अंदर आपके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे। जैसे 1 लाख शेयर है आपके पास और 100 रुपीज़ के शेयर है, अगर आप उसको 10 रुपीज़ के शेयर के अंदर कन्वर्ट कर दोगे तो आपके अंदर मार्केट के अंदर जो है शेयर ज़्यादा हो जाएंगे। क्यों? समझो 1 लाख शेयर थे और 100 रुपीज़ के थे, तो 1 लाख इंटू आप 100 करोगे तो 1 करोड़ हो जाएगा। अब वही शेयर को अगर 10 रुपीज़ के अंदर कन्वर्ट कर दोगे तो 1 करोड़ करोड़ डिवाइडेड बाय 10, तो नंबर ऑफ शेयर्स आपके 10 लाख हो जाएंगे। 10 लाख इंटू 10 हो गया 1 करोड़। तो पहले 1 लाख शेयर थे, अब 10 लाख शेयर हो गए, तो आपका 100 रुपीज़ का शेयर था, आपने सब डिवाइड करके 10 रुपीज़ के अंदर कर दिया, तो मार्केट के अंदर जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो आपके इंक्रीज हो जाएंगे। कैंसल द शेयर्स which are not taken by anyone and diminish the amount of its share capital. Sometimes any company issued a shares and some of the shares are not purchased by public, so company easily cancel their shares. अगर कोई कंपनी है उसने सपोज 5 लाख शेयर इश्यू किए हैं और मार्केट में पब्लिक ने 4,90,000 शेयर परचेज किए हैं, तो कंपनी के 10,000 शेयर पब्लिक ने परचेज नहीं किए, तो कंपनी को ऐसा लगे कि वो शेयर कैंसिल कर देना है, तो वो एक स्पेशल रिजोल्यूशन करके अपने जो शेयर्स हैं वो कैंसिल कर सकती है कि भी हमारे 5 लाख शेयर्स है, उसमें से 10,000 शेयर्स पब्लिक परचेज नहीं कर रही, तो 10,000 शेयर्स कंपनी कैंसिल कर देगी, तो फिर उनके मार्केट में जो शेयर है वो 4,90,000 हो जाएंगे। द शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी, द शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स or limited by guarantee and having a share capital may be reduced by a special resolution of the company which is followed by an application to the court, and on confirmation the share capital can be reduced. अगर कोई कंपनी है लिमिटेड बाय शेयर्स है या लिमिटेड बाय गारंटी है, अब उसको लगता है कि उसके पास प्रॉफिट इनफ है, अब ज़्यादा पब्लिक के अंदर शेयर नहीं रखना है, तो वो अपनी शेयर कैपिटल कम कर सकती है। कई कंपनी ऐसी होती है कि स्टार्टिंग में जब उनको फंड चाहिए तो मार्केट के अंदर शेयर इश्यू करके वो फंड एक्वायर करते हैं, पर जैसे जैसे कंपनी का डेवलपमेंट होता है, प्रॉफिट उनका इंक्रीज होता है, तो फिर उनके पास सफिशिएंट कैपिटल हो जाती है, तो फिर वो बायबैक करते हैं। बायबैक शेयर पब्लिक को बोलते हैं कि भाई आप अपने शेयर हमको वापस कर दो, हम जो अभी करंट मार्केट में जो प्राइस है वो आपको रिटर्न कर देंगे। तो ऐसे कंपनी एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके अपने मार्केट के अंदर जो शेयर कैपिटल है वो रिड्यूस कर सकते हैं। कई कंपनी ऐसी है कि भाई इनफ प्रॉफिट है, क्योंकि जितने शेयर मार्केट के अंदर आपके होंगे तो पर ईयर आपको डिविडेंड भी देना पड़ेगा, तो डिविडेंड पर ईयर आपको देना पड़ेगा। तो कई कंपनी कैसे करती है कि डिविडेंड का बोझ कम करना है तो मार्केट के अंदर उनकी जो शेयर कैपिटल रिड्यूस कर देंगे, तो बायबैक उसको बोलते हैं बायबैक शेयर, अपने ही शेयर वो मार्केट से अंदर से परचेज कर देंगे और उनकी जो शेयर कैपिटल वो रिड्यूस कर सकते हैं। अगर कोई कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो अगर कोई मेंबर है उसको गारंटी अपनी कम करनी है तो उनके लिए भी उनको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी, तो फिर
आप उसकी गारंटी कम कर सकते हो। सो देर आर मेनली 5 टाइप्स ऑफ चेंजेस आप कर सकते हो। एक चेंज इन द नेम क्लोज, अगर कंपनी का नेम चेंज करना है तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, और परमिशन आने के 15 डेज के अंदर आप तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है, उसमें आपका जो नया नेम है वो रजिस्टर करवाना पड़ेगा। चेंज इन रजिस्टर ऑफिस, तो चेंज आपकी रजिस्टर ऑफिस सेम सिटी के अंदर अगर आपको ट्रांसफ़र करना है तो शेयर होल्डर को बुला के एक रिजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा, और फिर 15 डेज के अंदर रजिस्टर ऑफिस के अंदर न्यू एड्रेस, न्यू रजिस्टर ऑफिस एड्रेस आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। अगर एक सिटी से अनदर सिटी के अंदर, लेकिन स्टेट वही रहेगा, जैसे गुजरात में अहमदाबाद से सूरत में शिफ्ट करना है तो सेम सिटी रहेगा, तो उसमें क्या हो जाएगा कि अगर आपको अहमदाबाद से सूरत के अंदर आपकी रजिस्टर ऑफिस शिफ्ट करनी है तो उसके लिए जो आपका ज्यूरिडिकेशन है वो चेंज हो जाएगा। पहले अहमदाबाद के कोर्ट के रूल्स अप्लाई होते थे, अब सूरत के होंगे, तो जो रीजनल डायरेक्टर है उसकी परमिशन आपको लेनी पड़ेगी। अगर आपकी जो रजिस्टर ऑफिस है वन स्टेट टू अनदर स्टेट, पूरा स्टेट ही आपको चेंज करना है तो कंपलसरी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी, उसके 30 डेज के अंदर कंपनी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज जो हैं वहाँ जाके आपको नेसेसरी फीस पे करनी है, नेसेसरी डॉक्यूमेंट आपको रजिस्टर करवाने हैं। आपको कोई भी स्टेट अगर चेंज करना है, अहमदाबाद गुजरात से आपको महाराष्ट्र में जाना है तो आपको क्रेडिटर्स, डिबेंचर होल्डर्स और अदर बैंक लोन, अगर उनका कोई ऑब्जेक्शन है तो उनकी भी परमिशन आपको लेनी बहुत ज़रूरी है। चेंज इन ऑब्जेक्ट क्लोज, अगर कंपनी है उसको कोई अपना ऑब्जेक्ट चेंज करना है तो उसके लिए भी स्पेशल रिजोल्यूशन चाहिए। जैसे आपने टाइल्स के लिए शेयर इश्यू किए थे, अब आपको टू व्हीलर का प्रोडक्शन करना है तो वही कैपिटल से करना है तो शेयर होल्डर की परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी आप कर सकते हो। जब तक कंपनी के रजिस्ट्रार हैं आपको परमिशन नहीं देते तब तक आप ऑब्जेक्ट क्लोज के अंदर कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने गवर्नमेंट की परमिशन या रजिस्ट्रार की परमिशन नहीं ली तो वो वैलिड नहीं होगा। चेंज इन लाइबिलिटीज क्लोज, अगर कोई कंपनी है उसको अपनी लाइबिलिटीज रिड्यूस करना है तो वो कर सकते हैं। कोई कंपनी है उसकी शेयर कैपिटल है या लिमिटेड बाय गारंटी है तो उसके लिए स्पेशल रिजोल्यूशन से किसी मेंबर की आप गारंटी कम कर सकते हो, और जो शेयर कैपिटल है उसमें जो अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ है उसको लाइबिलिटीज़ लिमिटेड भी कर सकते हो। चेंज इन कैपिटल क्लोज, इफ एनी कंपनी वांट टू इंक्रीज देयर ऑथोराइज कैपिटल, कंसोलिडेट, divide all its share capital from large amount to small amount shares, if any company want to cancel their shares, so at that time company may also change in capital, वो अपनी कैपिटल चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उसकी 75% मेजोरिटी आपके पास होनी चाहिए, तो फिर आप इतना चेंज कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, टुडे वी कंप्लीटेड आवर टॉपिक चेंजेस इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन।